Hello dear friends, myself is Roshni Parikh and today we are going to learn about the problem based on KVL. Now in a previous section we have already learned about the Kirchhoff current law and Kirchhoff voltage law. Suppose if you want to recall, then just go to the YouTube inbox and search for the Kirchhoff current law and Kirchhoff voltage law by Roshni Parikh and you will get the link. Now today we are going to learn about the Maxwell loop current method by solving one network. See here, for example, one network is a given. This network having three energy sources which is labeled as a E1, E2 and a E3 and having a three loop. Now what is a loop in any network? Loop means a closed path. If I say okay, here a first loop, that is the label as a B G H A, that is the one loop. Same way B C F G B, that is the second loop, and C D E F C, that is the third loop. Now if you want to find out the value of an unknown current passing or supplied by the each battery, if you want to find out the values of unknown current, then how can we solve this network by using the Maxwell loop method? So first step is apply the KVL in each loop. And write the equation. If in this network 3 loop is there, then apply the KVL in each and every loop and write the equation for each loop. सबसे पहले हमें क्या करना है, तो तीनों लूप में हमें KVL अप्लाई करना है और KVL अप्लाई करके हमें इक्वेशन बनाना है. तो KVL क्या था हमारा, व्हाट इज दिस स्टेटमेंट ऑफ KVL? तो KVL का स्टेटमेंट कुछ ऐसा था कि इन एनी नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन एनी क्लोज लूप इज अ ज़ीरो. किसी भी नेटवर्क में कोई भी क्लोज लूप है तो क्लोज लूप का वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए. KVL का हमारा स्टेटमेंट क्या है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन एनी लूप, algebraic sum of voltage is 0. That is the our statement of KVL. कि कोई भी लूप है तो लूप में वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए. मतलब कि कोई भी लूप में जितने भी एलिमेंट है तो वो एलिमेंट के अक्रॉस के वोल्टेज ड्रॉप should be a algebraic sum of the voltage drop across each and every element should be the 0. That is the our statement of KVL. तो फर्स्ट क्या करना है कि सभी लूप में हमें KVL अप्लाई करना है. नाउ बिफोर अप्लाइंग द KVL इन ईच लूप यू हैव टू एज्यूम द लूप करंट. सबसे पहले आपको लूप करंट एज्यूम करना है. सी हियर 3 लूप्स आर देयर, so you have to assume the 3 loop current. Now you can take either a clockwise direction or a anti-clockwise direction. The direction, choice of the direction, that is dependent on the you. See here, for a easiest method, take the loop current I1, I2 and I3 in a clockwise direction. For the easiest method, टेक ऑल द लूप करंट इन द सेम डायरेक्शन. एक ही डायरेक्शन में आपको लूप करंट लेना है. सपोज इफ ऐसे कि यहाँ पे 3 लूप है तो 3 लूप करंट आएंगे. तो यहाँ पे मैंने लूप करंट को कैसे लेबल किया, हियर I1, I2 एंड I3 आर द लूप करंट. नाउ here I1 that is in a clockwise direction. Same way I have also taken a I2 in the clockwise direction and I3 also in a clockwise direction. You can take a anti-clockwise direction too. इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. You can also take a 1 loop current in a clockwise direction and another 2 loop current in a anti-clockwise direction. The directions is dependent on you कि कौन सी डायरेक्शन में आपको लेना है, इधर क्लॉकवाइज लेना है, एंटी क्लॉकवाइज लेना है, that is dependent on you. और if I say कि here in a loop 1 there is a 1 battery is there, here a positive terminal, here a negative terminal, and always a conventional direction of the current flowing, that is from positive to negative. So in a first loop I1 should be flow from the positive to negative. Same way in a second loop here E2 is there and E2 here a positive terminal and here a negative terminal.
सो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो यहाँ पे आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो एज पर द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्लो. Same way here E3 is there, here a positive, here a negative. Always current starts from the positive and terminate at the negative. So direction of the current flowing from positive to negative, तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव भी ले सकते हो. बट इसमें क्या है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा. सो ईजीएस्ट वे टू टेक ऑल द लूप करंट इन द सेम डायरेक्शन. आप एक ही डायरेक्शन में तीनों लूप करंट को ले लो. यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ऑल द 3 लूप करंट आई हैव टेकन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यू कैन ऑल्सो टेक इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यू कैन ऑल्सो टेक एज पर द कन्वेंशनल फ्लो ऑफ ए करंट. सी हियर. Now what is the second step? तो second step is apply the KVL in a each loop. यहाँ पे 3 लूप है, 3 क्लोज पाथ है, तो तीनों क्लोज पाथ में हम KVL अप्लाई करेंगे और इक्वेशन बनाएंगे. तो सी हियर, अप्लाई KVL in loop A B G H A. पहले लूप में हम KVL अप्लाई करेंगे. अब KVL क्या है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन एनी क्लोज लूप दैट इज द जीरो. दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ KVL विच आई हैव ऑलरेडी सेड अर्लियर. मीन्स क्या कि सपोज सी हियर इन अ फर्स्ट लूप 2 रेजिस्टर्स आर देयर एंड 1 बैटरी सोर्स मीन्स 1 सोर्स इज देयर. सो सिंपल आपको एक मैं वे बताती हूँ कि कैसे आपको करना है कि इफ़ करंट इज एंटरिंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इफ़ करंट इज एंटरिंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, एट दैट टाइम वो बैटरी का वोल्टेज को नेगेटिव लो और बाकी के जो भी एलिमेंट है उसके अक्रॉस के वोल्टेज जो ड्रॉप है उसको आप क्या करोगे, तो उसको आप प्लस से दिखाओगे. ये एक वे है. और दूसरा वे क्या है कि इफ़ करंट इज एंटरिंग फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी देन दैट वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव. कि ये बैटरी वोल्टेज को आप पॉजिटिव लो और बाकी के जो 2 एलिमेंट है उसके अक्रॉस के वोल्टेज ड्रॉप को आप नेगेटिव कंसिडर करो. ये 2 वे है. आपको कौन सा कन्वीनियंट रहता है वो आप पे डिपेंड करता है. नाउ मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि इफ़ माई करंट इज एंटरिंग, सी हियर I1 इज फ्लोइंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो I1 इज एंटरिंग इनटू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. कि I1 कहाँ पे जाता है, नेगेटिव टर्मिनल से एंटर होता है और पॉजिटिव से बाहर जाता है. ऐसा मेरा फ्लो है. तो नेगेटिव से एंटर होता है तो आपको क्या करना है कि बैटरी के जो भी वोल्टेज है उसको कैसा कंसीडर करना है, प्लस साइन से. और बाकी के जो एलिमेंट है यहाँ पे R1 और R2 रेजिस्टर है तो उसके अक्रॉस के वोल्टेज ड्रॉप है वो माइनस ले लो. दैट इज़ दी वन वे. तो सी हियर apply the KVL in a first loop. तो see here my current loop current I1 is flowing through the E1 from negative to positive, means you are travel from the lower potential to the higher potential. So there is a voltage rise, so always consider a battery voltage as a positive. So plus 12 is there. Same way then after take a voltage drop across the resistor R1, that is the minus. आपको करंट एंटर होता है नेगेटिव में से तो बैटरी वोल्टेज को क्या कंसिडर करोगे, प्लस. और बाकी के 2 एलिमेंट के अक्रॉस के वोल्टेज ड्रॉप को आपको क्या लेना है, माइनस करके. तो माइनस सी हियर अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी 2 ओम रेजिस्टेंस. वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस दैट इज दी what is that is the IR drop. See here I that is the I1 and value of the resistor that is the 2 ohm. So here 2 I1 is there. So minus 2 I1. Same way minus in a BG branch the voltage drop across the R2 resistor. Now see here through the R2 element 2 currents are flowing. In a branch BG 2 currents are flowing, I1 and I2. ये R2 रेजिस्टेंस है उसमें से 2 करंट पास होते हैं, I1 दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड I2 कहाँ से जाता है, I1 ऐसे नीचे आता है और I2 ऐसे ऊपर जाता है. तो R2 के अक्रॉस में से 2 करंट R2 में से 2 करंट जाते हैं I1 और I2. तो आपको क्या कंसीडर करना है कि ऑलवेज हमारा जो करंट है वो कैसे लेंगे कि 4
I1 माइनस I2 हम ऐसे लेंगे। नाउ ऑलवेज व्हेन द डायरेक्शन ऑफ बोथ द लूप करंट I1 और I2, see here two loop currents are there, I1 and I2. When both loop current are in the same direction, see here in a same direction, both are flowing in a clockwise direction, at that time minus sign is considered there. okay? यहाँ पे क्या रखना है, माइनस साइन रखना है। सी हियर I1 ऐसे नीचे आता है और I2 ऐसे ऊपर जाता है, तो I1 माइनस I2 होगा। तो R2 के अक्रॉस का ड्रॉप क्या होगा, IR ड्रॉप। तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, 4 है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखी 4। और करंट क्या है, I1 माइनस I2। अब आपको होगा कि हमने I2 माइनस I1 क्यों नहीं किया, तो वी आर एज्यूमिंग, सी वी आर अप्लाइंग अ KVL फॉर द फर्स्ट लूप। हम पहले लूप के लिए KVL अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ऐसे एज्यूम करके चलना है कि I1 इज ग्रेटर देन दी अनदर टू लूप करंट I2 एंड I3। आपका I1 है I2 और I3 से ज़्यादा ही है, आपको ऐसे एज्यूम करना है। डेट्स वाई हियर I1 माइनस I2 इज देयर इंस्टेड ऑफ दी I2 माइनस I1। आप जिस लूप के लिए KVL लगा रहे हो वो लूप करंट एज्यूम करना है कि ऑलवेज ग्रेटर देन दी अदर लूप करंट। So I1 is greater than the I2. So here I1 minus I2 is there. Now again come back from GH branch. Here there is a no element is there. So here is equal to 0. That is my first equation. आपको पता चला कि in a first loop apply the KVL. In a KVL one method is that when current is entering into the negative terminal of battery, then consider that battery voltage as a positive. तो उसको क्या लेना है, प्लस लेना है, और बाकी के दो जो एलिमेंट है और बाकी जितने भी एलिमेंट है उसके अक्रॉस के वोल्टेज ड्रॉप को माइनस कंसीडर करना है और ऐसे इक्वेशन बनाना है। तो डेट इज़ माय फर्स्ट इक्वेशन। सो फाइनली प्लस 12 माइनस 2I1 माइनस 4I1 माइनस माइनस प्लस 4I2 that is equal to 0. So finally 12 minus 2I1 4 और यहाँ पे 6I1 plus 4I2 that is equal to 0. That is the my equation number 1. Same way apply the KVL in a second loop. Apply KVL in loop B, C, F, G, B. दूसरे लूप में KVL अप्लाई करना है। इसे हियर मैंने जो कहा था वैसा ही याद रखो कि I2 इज़ अ लूप करंट विच इज़ फ्लोइंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मीन्स क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो देखो बैटरी के कौन से टर्मिनल में एंटर होता है, पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर होता है और नेगेटिव में से बाहर निकलता है। तो आपको क्या करना है, मैंने बोला था कि इफ़ करंट इज एंटरिंग इन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एट दैट टाइम कंसीडर द बैटरी वोल्टेज एज अ पॉजिटिव। यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल में से बाहर निकलता है तो आपको बैटरी वोल्टेज कैसा कंसीडर करना है, माइनस। सो माइनस इज देयर एंड सी हियर बाकी के जो भी है वो एज इट इज़ माइनस ही। तो सी हियर in a CF branch the voltage drop across the R3 resistor. Now see in a branch CF also two current I2 and I3 are flowing through the resistance R3. R3 में से दो करंट पास होते हैं I2 एंड I3। दोनों की डायरेक्शन कौन सी है, I2 एंड I3 आर द लूप करंट फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। सो माइनस साइन इज देयर एंड यू आर अप्लाइंग द KVL फॉर द लूप 2. So consider, assume that I2 is greater than the I3. So always take a I2 minus I3. So minus 6 I2 minus I3. Now in a FG branch there is a R6 resistance. So R6 having a value of a 12 ohm and a current flowing through the 12 ohm resistance, that is the I2. So minus 12 I2. Again in a GB branch there is a value of a resistance, that is the 4 ohm and two current are flowing I2 and I1, both are flowing in the same direction. So minus sign is there. Now you are applying KVL for the second loop. So consider I2 is greater than the I1. So take I2 minus I1. So minus 4 I2
minus I1 that is equal to 0. So minus 9 minus 6I2 minus minus plus 6I3 minus 12I2 minus 4I2 minus minus plus 4I1 that is equal to 0. So finally you will get minus 9, see here, then minus 6 minus 12 and minus 4 that is the minus 22I2 plus 6I3 and plus 4I1 that is equal to 0. That is the my equation number 2. पता चला आपको? Now same way apply the KVL in a loop 3. Apply KVL in a loop C D E F C. ये लूप में KVL अप्लाई करना है. स्टार्ट कहाँ से करना है? बैटरी वोल्टेज से. कि इफ़ करंट इज एंटरिंग फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल, जो करंट हमारा लूप करंट ए नेगेटिव टर्मिनल में एंटर होता है और पॉजिटिव से बाहर निकलता है तो डेट बैटरी वोल्टेज इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव. तो यहाँ पे क्या आता है? +6. बाकी के जो भी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एलिमेंट है उसको नेगेटिव ही कंसिडर करना है. तो नाउ इन अ FC ब्रांच देयर इज अ रेजिस्टेंस R3 में से दो करंट फ्लो होते हैं I2 एंड I3. वैल्यू क्या है R3 की? 6. तो -6. अब क्या करना है? I3 एंड I2 बोथ आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, क्लॉकवाइज ही है तो माइनस साइन आएगा उसके बीच में. बट यू आर अप्लाइंग KVL फॉर अ थर्ड लूप, सो कंसिडर I3 इज ग्रेटर देन दी I2. तो आपको क्या लिखना है? I3 माइनस I2. Same way in a CD branch 8 ohm resistance, so voltage drop will be 8I3, and in a DE branch there is a R5 resistance, so minus 10I3 that is equal to 0. So finally you will get +6 minus 6I3 minus minus plus 6I2 minus 8I3 minus 10I3 that is equal to 0. So you will get +6 minus 6, 8 and 10. 10 and 8, 18, 24. 24I3 plus 6I2. There is a no I1, so that is equal to 0. That is the my equation number 3. So सबसे पहले आपको क्या करना है नेटवर्क सॉल्व करने के लिए कि जितने भी लूप है उतने लूप करंट एज्यूम करना है. हियर 3 लूप्स आर देयर, देन द 3 लूप करंट I1, I2 एंड I3 आर द 3 लूप करंट एंड एज्यूम फ्लोइंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. डायरेक्शन आप पे डिपेंड करना है कि आइदर क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो, या तो बैटरी दी गई है मीन्स सोर्स दिया गया है और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन आपको लेनी है सपोज फ्रॉम दी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यू कैन टेक लाइक दिस. हियर फॉर द इजीएस्ट वे एक ही डायरेक्शन में तीनों लूप करंट को एज्यूम करो. इफ़ यू आर टेकिंग ऑल इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, टेक ऑल इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इफ़ यू एज्यूम टू फ्लो इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो तीनों में एंटी क्लॉकवाइज ले लो. तो डेट इज़ द इजीएस्ट वे. कोई भी आप ले सकते हो, इक्वेशन तो सेम ही रहेगा. फिर दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि अप्लाई द KVL फॉर द ईच लूप. जितने भी लूप है उसमें KVL अप्लाई करो और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाओ. यहाँ पे 3 लूप है तो आपको 3 इक्वेशन मिलेंगे. इफ 4 लूप इज देयर देन अप्लाई द KVL इन ईच लूप एंड राइट द इक्वेशन फॉर द ईच लूप. अब KVL का स्टेटमेंट क्या है कि इन एनी क्लोज लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज दैट शुड बी अ 0. कि कोई भी क्लोज लूप है तो उसमें जितने भी एलिमेंट है उसके अक्रॉस के वोल्टेज ड्रॉप क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो यहाँ पे एक मैंने बेस्ट वे बताया आपको, सिंपल वे बताया कि कोई भी लूप है तो सपोज के करंट इज फ्लोइंग, योर लूप करंट इज फ्लोइंग मीन्स एंटरिंग into the negative terminal of battery and terminate from the positive terminal of battery. At that time consider that battery voltage as a positive. उसको पॉजिटिव कंसिडर करो और बाकी के सब एलिमेंट के अक्रॉस के वोल्टेज ड्रॉप के आगे माइनस लगा दो तो आपको इजी रहेगा. सेम में यहाँ पे क्या होता है कि योर लूप करंट इज एंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड लिविंग फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है तो उसको कंसिडर करो माइनस से और बाकी के जो भी एलिमेंट है उसके वोल्टेज ड्रॉप माइनस ही ट्रीट करना है. और ऐसे इक्वेशन सब बना दो तो आप
आपको 3 इक्वेशन मिलेंगे. नाउ यूजिंग द डिटर्मिनेंट मेथड सॉल्व द इक्वेशंस एंड फाइनली यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ द अननोन करंट, दैट इज द I1, I2 and I3 which is supplied by the batteries. So here by using the determinant method, the values of the I1 that will be the 2.019 ampere, I2 that will be the 0.28 ampere and I3 will be 0.251 ampere which is supplied by the source E1, E2 and E3. So this way you can solve any network by using the KVL, by applying the KVL using the Maxwell loop current method. Thank you.